में हमने डेरिवेटिव के कुछ बेसिक रूल्स देखे थे, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। एक्सरसाइज बेसिकली 3.3 तक हमने डेरिवेटिव रूल्स के हवाले से कर ली थी। नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Okay, first of all, we will see the derivative of hyperbolic function. As you know, the value of sine hyperbolic x is equal to exponential x minus exponential की power minus x by 2, and the value of cos hyperbolic x is equal to exponential x plus exponential की power minus x by 2। दोनों की रिलेशन सेम है। साइन में माइनस आ जाएगा, कॉस में प्लस आ जाएगा। सिमिलरली एज यू नो, tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स की और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की, वी विल गेट द रिलेशन ऑफ द tan hyperbolic x. Now we are interested how can we find the derivative of sin hyperbolic x, cos hyperbolic x and tan hyperbolic x. तो sin hyperbolic x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, we will apply the derivative on the both side of this equation. It will become the derivative of e की power x exponential x is equal to e of x. e की माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस विल बिकम प्लस e की पावर माइनस एक्स बाय 2, and this is equal to the cos hyperbolic x. Similarly, we can find the derivative of cos hyperbolic x. It will become d by dx into the derivative of cos hyperbolic x, that is equal to the e की power x plus e की power minus x by 2, and it will become e की power x exponential power x, and minus sign will comes here, minus e की power minus x by 2, and that is equal to sin hyperbolic x. It means the derivative of sin hyperbolic x is equal to cos hyperbolic x, and the derivative of cos hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x. Okay, if we want to find the derivative of secant hyperbolic x, okay, first of all we can write secant hyperbolic x as a 1 over cos hyperbolic x. It will become d by dx, derivative of 1 over cos hyperbolic x. And what is the value of cos hyperbolic x? It is equal to exponential power x plus e की power minus x by 2. Okay, this 2 will come in the numerator, and we will, when we will apply the डेरिवेटिव, बेसिकली डिनोमिनेटर में टर्म है ये ऊपर आ जाएगी विद -1 पावर के साथ। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, और जैसे आपने बेसिक रूल्स में पढ़ा है कि मेरे पास जब माइनस पावर आती है, माइनस यहाँ आ जाएगा, एंड -1 इट विल बिकम -2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -2 ओवर एक्सपोनेंट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम इस टर्म का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे एज पर रूल, तो मेरे पास क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस एक्स। ओके, अच्छा, इसको फिर जब हम फर्दर ये करेंगे -2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू e की x। बेसिकली ये हमने सिंगल सिंगल पावर में लिख दी है। अब आपको पता है कि मैं ये वाले टर्म और इस टर्म, इन दोनों टर्म्स को मिलाऊं, इट विल बिकम द फार्मूला ऑफ tan हाइपरबोलिक x। ये हमने ऊपर पढ़ा भी है, ये देखें, tan hyperbolic x is equal to this। ठीक है, it will become the formula of tan hyperbolic x, and -2 over this will be equal to the secant hyperbolic x. So the derivative of secant hyperbolic x is equal to minus secant hyperbolic x into tan hyperbolic x. Similarly, you can prove the relation of the remaining trigonometric hyperbolic functions. The derivative of cosecant hyperbolic x is equal to cosecant hyperbolic x cot hyperbolic x. The derivative of tan hyperbolic x is equal to secant hyperbolic square x, and the derivative of cot hyperbolic x is equal to cosecant
हाइपरबोलिक स्क्वायर इंटू हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके प्रूफ आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बेसिकली आपको इसका रिलेशन मालूम होना चाहिए। अच्छा, ओके, नाउ वी कम द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। द डेरिवेटिव ऑफ द लॉग ए एक्स, अगर मेरे पास लॉग ए एक्स की फॉर्म में कोई भी टर्म दी है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/x कर देते हैं और एल एन ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ लॉग एन बेसिकली तो क्या आ जाता है मेरे पास 1/x, बेसिकली लॉग के साथ जो भी टर्म होगी वो 1/x आ जाएगी, बाकी that will become 1/a when x is greater than 0, और डेरिवेटिव ऑफ ax it will become ax into log of a। ये बेसिक रिलेशंस है, तो देख लीजिएगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, अब मेरे पास अगर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाउ कैन आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो एक एग्जांपल में आपको एक प्रूफ करवा देता हूँ इसमें। फर्स्ट प्रूफ इज डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये इसकी वैल्यू कैसे आई है, लेट वी प्रूफ द वैल्यू के हाउ सी साइन हाइपरबोलिक माइनस 1x इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब प्रूफ कैसे, लेट वो एज्यूम करते हैं कि जितनी भी ये टर्म है मेरे पास साइन हाइपरबोलिक्स माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको हम इक्वल टू वाई पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये टर्म मेरे पास ये क्योंकि -1 पावर के साथ है, इसको अगर हम इधर जाकर डिवाइड होके या इसको हम उसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड होगा, डिवाइड को जब हम ऊपर लेके जाएंगे इट विल बिकम साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है साइन हाइपरबोलिक एक्स की इक्वेशन क्या होती है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर वाई। अब क्योंकि यहाँ साइन हाइपरबोलिक y है, then we will write this equation in terms of y, this will become equal to x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y will become 2x। अच्छा 2 इधर आकर -2x जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पूरी टर्म को अगर e की पावर माइनस y से डिवाइड कर दूं, e की पावर y ओवर e की पावर माइनस y, या ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, द इक्वेशन विल बिकम e की पावर 2y माइनस 2x e की पावर, बेसिकली ये दिस टर्म टू एक्स ई की पावर y आ जाएगा, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल बिकम 1। ओके, अब आपको इसको आप देख सकते हैं, दिस इज द, अगर हम इसको फॉर्म लिखे e की पावर y का स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पता है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ओवर 2ac आ जाता है मेरे पास। ठीक है, तो यही मेरे पास b, इसमें क्या आएगा, a क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा मेरे पास 2x, और c क्या आ जाएगा मेरे पास -1 आ जाएगा। ये वैल्यूज पुट करेंगे, आई विल गेट e की पावर y इज इक्वल टू x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब e की पावर y जो है इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। यहाँ पर वैल्यू दिस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते हैं, मैं कहता हूँ सिंस ई वाई इज ग्रेटर देन 0, क्यों ग्रेटर देन, हमने बताया कि इसकी वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। तो और ये जो टर्म है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर x की पावर माइनस में पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बेसिकली क्या चाहिए, e की पावर x इज लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर नेगेटिव साइड नॉट एडमिसिबल। कैसे, मैं कहता हूँ आपको पता है 0 इज लेस देन 1, 0 की जगह पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेसिकली 0 ही होता है मेरे पास, तो एक एक्स स्क्वायर उधर ले गया, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर दोनों साइडों में मैं अंडर रूट ले लेता हूँ तो एक्स इज लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, लेस देन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दिस टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास e की पावर y की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस दोनों साइड्स पे क्या ले लेता हूँ, अपना नेचुरल लॉग अप्लाई कर देता हूँ, ln e की पावर y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस।
ठीक है। अब ये क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ y नेचुरल log ऑफ e इज इक्वल टू दिस। और बता लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में करती कैंसिल हो जाती है, लॉग एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल हो गया, बाकी y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्र प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है तो y किसके इक्वल था। अब अगर आप शुरू में देखें, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस प्रूफ यू एज्यूम दैट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि y मेरे पास के बराबर है साइन हाइपरबोलिक x h हाइपरबोलिक इनवर्स x के बराबर है। तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पुट बैक की अपनी कि y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक -1 इंटू एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये टर्म आ गई यूजिंग इक्वेशन वन में जो हमने अज्यूम किया था। तो अब इसका मैं करूंगा डेरिवेटिव ले लूंगा, दोनों साइडों पर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा। डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग इनटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। अब डेरिवेटिव इसका कैसे हम लेंगे, आपको पता है कि ये जो मेरे पास टर्म है, अब जैसे जब नेचुरल लॉग का टर्म लेते हैं कि पहले मेरे पास जो टर्म है ये 1/, की वजह से रिलेशन अगर आप देखें, आप मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, फ्रॉम दिस रिलेशन डेरिवेटिव लॉग ए एक्स इज इक्वल टू या नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 1/x लॉग ऑफ ए। ठीक है। तो वो करेंगे, मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, ये 1/, करके पूरी टर्म आ जाएगी, फिर देन वी विल अप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव अलग लेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव अलग से आएगा। ये क्या आ जाएगा, 1/x, ये टर्म आ गई फर्स्ट टर्म बिफोर द डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरे पास, बेसिकली इसकी पावर, अगर इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2, 1/2 पावर है तो 1/2 पावर पहले आ जाएगी। और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसको जब मजीद हम एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास, बेसिकली व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी टर्म्स मेरे पास बच जाएंगी। और एंड में जब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। So this is how we prove that derivative of sine hyperbolic inverse x is equal to 1/under root x square plus 1. Similarly, you can prove the derivative of cos hyperbolic x hyperbolic inverse x. This will be on the same pattern कि आप पहले sin hyperbolic x को cos hyperbolic inverse x को आप y की इक्वल पुट कर लेंगे, फिर cos hyperbolic y बन जाएगा, इक्वल टू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सेम पैटर्न आएगा, सिर्फ प्लस और माइनस का साइन चेंज होगा, सेम डेरिवेटिव लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। Similarly, you can find the derivative of tan hyperbolic x by using the same concept, cot, secant, cosecant। ठीक है, ये आप प्रूफ इजीली इसको कर सकते हैं हाइपरबोलिक, द डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस का। ये आपको प्रूफ भी आना चाहिए, प्लस जो आपके रिलेशन है कि आप व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan hyperbolic x, cot hyperbolic x, you should know the derivative of these inverse hyperbolic functions। ठीक है। अच्छा, now we will solve few examples for your practice। uh, Moving towards the first example, first example is the find slope of the tangent। अब आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डेरिवेटिव क्या है, हमने देखा था कि बाय डेफिनेशन इट इज डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। अच्छा, लाइन टू एफ ऑफ एक्स, अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एट पॉइंट 0,3 एंड 2 -2,7 यूजिंग फोर स्टेप मेथड। फोर स्टेप मेथड बेसिकली कह लें इसको, या जैसे मैंने बताया था कि बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। डेफिनेशन को मैं फोर स्टेप मेथड क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली हम क्या पुट कर रहे होते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एक्स नॉट कह लें, या उसको कहते हैं अगर आप एच की फॉर्म लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, व्हेन एच अप्रोचेस टू जीरो, तो आप एच को आप एक्स नॉट पे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स पे लिख सकते हैं,
मैंने उसको माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, तीसरे में आपने उसकी वैल्यूज पुट करनी है, चौथे में आपने उसकी लिमिट अप्लाई करनी है। तो सेम प्रोसीजर वी विल अडॉप्ट इन दिस एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इक्वेशन क्या दी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस, सॉरी, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया ओरिजिनल इक्वेशन में, एक्स की जगह हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट कर दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 3। सिमिलरली सेकंड स्टेप में क्या किया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये स्टेप में हमने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ निकाली थी, वो वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 3 पुट कर दी, सॉरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 3, क्योंकि टर्म माइनस में है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दीज बोथ टर्म्स विल कम इन नेगेटिव, ठीक है, कैंसिल आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स, द रेस्ट विल बिकम डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स। स्टेप 3 में क्या है, हम जो हमारा जो बाय डेफिनेशन फार्मूला है डेरिवेटिव का, या 4 स्टेप मेथड उसको हम कह लें, उसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है जो हमने निकाली है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज वी विल गेट डेल्टा एक्स प्लस 2x। नाउ इन द फोर्थ स्टेप वी विल अप्लाई द लिमिट कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है, जब ये टर्म 0 हो जाएगी मेरे पास 2x मेरे पास बन जाएगा। बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट एफ ऑफ एफ, इस पॉइंट पे x और f ऑफ x है ऑन द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है, यू कैन डिफाइन दिस कि दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट, मेरे पास क्या है x और f ऑफ x है ऑन अ ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। हमने करना क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन वाज फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट दिस, अब पॉइंट्स में दिए हुए 0, 3 और -2, 7, उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर हम फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स पे, तो मैं क्या करूंगा इसमें x की जगह बेसिकली दिस इज x, दिस इज f ऑफ x, दिस इज x, दिस इज f ऑफ x, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू पहले जब 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जब मैं x की वैल्यू इसमें 2 पुट करूंगा तो स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास दो स्लोप्स आते हैं, पहले जब मेरे पास पॉइंट है 0 और 3 का तो स्लोप 0 आ रहा है, जब -2 और 7 का पॉइंट तो मेरे पास स्लोप क्या आ रहा है, -4 स्लोप आ रहा है, सॉरी इसमें स्लोप आ रहा है, हाँ जी -4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेट मेथड से क्या होता है, जैसे हमने जी वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ ऑफ, मेरे पास अगर मैं एच को इक्वल पुट, जो एच की जगह हम जी पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हम जी पुट कर देते, तो मेरे पास क्या इक्वेशन मिल जाती थी, मेरे पास एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ, उसमें क्या था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी था। उसी फॉर्मूले में हम जी की जगह को रिप्लेस करना सी के साथ, कि एक्स को, सॉरी एक्स को जी रिप्लेस कर दें जी के साथ, और सी को रिप्लेस कर दें विद एक्स, यू विल गेट दिस रिलेशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। इसमें मैं क्या है कि हियर सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, सी 0 है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास पहला पॉइंट क्या था, मेरे पास पॉइंट बेसिकली क्या था, एक था हमारे पास वो था कि व्हेन z अप्रोचेस टू x, जो मैंने आपको क्लास में करवाया भी था, तो x की जगह मैंने इसको क्या पुट किया, c पुट किया, तो c की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 0 हो गई और -2 हो गई। जब c की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, जब c की वैल्यू 0 होगी, मैं क्वेश्चन जब पुट करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 में, तो c की वैल्यू मेरे पास एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 -3 ओवर एक्स -0, क्योंकि पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 है, तो मेरे पास स्लोप क्या आ गई, 0 आ गई। और जब मेरे पास सेकंड पॉइंट है -2 और 7 वाला, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा -2 ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 के अंदर, तो एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा मेरे पास, 4 -3 आ जाएगा, तो मैं क्या लिख दिया, -4 -3, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको कि एक्स एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एफ ऑफ सी क्या है, सी की वैल्यू जब -2 और 7 है, तो मेरे पास जब -2 पुट करूंगा तो -4 -3 आ जाएगा, दैट विल बिकम 4। तो स्लोप मेरे पास दोनों केसेस में, दोनों मेथड में मेरे पास स्लोप क्या आ रही है, जो पॉइंट्स मेंशन है दोनों पे मेरे पास 0 और -4 स्लोप आ रही है। अच्छा, बी पार्ट वो करता है इसी क्वेश्चन का कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट लाइन, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड आउट कर दी है। आपको पता है कि अगर आपके पास स्लोप गिवन हो तो मेरे पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन होती है, वो क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ मैंने वाई वन क्या लिख दिया, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट लिख दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, अब पहला पॉइंट क्या है, 0,3 है, एफ 0,3 का मतलब एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मेरे पास एक्स नॉट क्या है, यहाँ पर 0 है, एफ ऑफ एक्स नॉट मेरे पास क्या है, 3 है। इसमें जब पुट करूंगा मैं y, एफ ऑफ एक्स नॉट मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, -3 इज इक्वल टू स्लोप मेरे पास क्या निकला है, किस पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है मेरे पास 0 और 3 पर स्लोप क्या था, 0 था। अभी हमने निकाला 0, x माइनस 0 आ जाएगा, देन y इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास क्या था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इट दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट, 0 एंड 3, y की वैल्यू मेरे पास 3 है। और दूसरा मेरे पास क्या है, किस पॉइंट पे, -2 और 7 पे। तो 4x इज इक्वल टू एक्स मेरे पास क्या, -2 और एफ ऑफ एक्स नॉट मेरे पास क्या 7 है। तो मैं अपनी इक्वेशन स्लोप में जब पुट करूंगा तो दिस विल बिकम y -7 इक्वल टू -4x+2। तो y इज इक्वल टू -4x -8 -7, इधर आ जाएगा +7 जाएगा, तो y विल बिकम, ये क्या मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन, y +4x+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है आपको। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने मालूम की है बाय यूजिंग द स्लोप इक्वेशन। क्लियर एट दीज 2 पॉइंट्स। नाउ वी विल सॉल्व फर्दर 1 or 2 एग्जांपल्स फॉर फर्दर क्लियरिटी। कि अब वो कहते हैं कि लेट, and this is next example, let f of x is equal to under root x plus 1, find x prime x, derivative x find आउट करना है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। आपको पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हम की मालूम करते हैं नॉर्मली इक्वेशन ऑफ द स्लोप से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट क्या है, एक्स और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8। अब देखें एक्स इज इक्वल टू 8 तो दिया हुआ, लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई। आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसलिए निकाल सकते हैं, अगर आप इसमें एफ ऑफ एक्स की जो इक्वेशन दी हुई है इसमें एक्स की जगह 8 पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स विल बिकम इक्वल टू under root 8 plus 1, that will become 9, and under root of 9 is equal to 3. ठीक है, so the point will become 8 and 3 at 8,3। अब by definition अगर हम देखें f prime x derivative of x is equal to limit h is equal to 0 f of x plus h minus f of x over h मेरे पास होती है। ठीक है, अब f of x plus h, f of x plus h क्या आ जाएगा, इसमें हम प्लस h कर देंगे, क्या लेंगे x plus h plus 1, एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की मेरे पास एक्स प्लस 1 अंडर रूट है ओवर एच है। आपको पता है हम लिमिट जब तक पुट नहीं कर सकते जब तक हम इक्वेशन को यहाँ तक सॉल्व ना कर लें कि हमारे पास आंसर अनडिफाइंड ना आए। तो डिफरेंट मेथड से हम करते हैं। इसमें हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, फर्दर इस इक्वेशन को रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आ गई वो इस फॉर्म में आ गई है। ठीक है, रैशनलाइज उसके बाद मैंने इसमें लिमिट पुट कर दी एच इज इक्वल टू, अब मैं इसमें लिमिट पुट कर सकता हूँ कि मेरे पास अब आंसर अनडिफाइंड नहीं आएगा। जब एच की वैल्यू 0 पुट कर दी इट विल बिकम 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। तो मैं लिखता हूँ 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1। दिस विल बी द एफ प्राइम। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम करना है बाय यूजिंग द स्लोप इक्वेशन। ठीक है, अब जब एक्स की वैल्यू 8 होगी तो एफ प्राइम 8 किसके बराबर होगा, दैट विल बिकम 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 3 एक्स इज इक्वल टू 8 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इट विल बिकम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एफ ऑफ 8 की जगह 3 पुट कर दिया इज इक्वल टू स्लोप क्या है, एम की वैल्यू क्या है 1/6 है, 1/6 पुट कर दी इनटू एक्स माइनस 8, दैट विल बिकम वाई इज इक्वल टू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, एक्स ओवर 6 प्लस वाई ओवर 3 आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ, इसके बाद हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। फर्दर आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। द लास्ट एग्जाम्पल इज अबाउट द फाइंड
all values of x at which the tangent to the line given curve is horizontal. ठीक है, find all values of x at which the tangent to the given curve, कि कर्व का उसका टेंजेंट है इज हॉरिजेंटल। अब कर्व का टेंजेंट हॉरिजेंटल कब होगा, जब वो क्या होगा, पैरेलल टू द वाई एक्स एक्सिस होगा। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जब कोई भी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है, उसका स्लोप कितना होता है, स्लोप उसका क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ हॉरिजेंटल इज टेंजेंट slope of the line x is to x axis is parallel to x axis, और जो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप की मेरे पास क्या होता है, स्लोप कहते हैं जीरो हो जाता है। तो मेरे पास पहले बाय डेफिनेशन हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। एफ प्राइम भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ बाय डेफिनेशन मालूम कर सकते हैं। सेकंड फर्स्ट ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ एक्स टू एट विच, अब स्लोप इक्वेशन लगाएं, देन टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। हम कहेंगे y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y प्राइम इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, we will get x square plus 4x plus 1 is equal to 0, and this is the form of quadratic equation। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, x is equal टू प्लस माइनस अंडर रूट हॉरिजॉन्टल। जब मेरे पास x की वैल्यू इक्वेशन ये होगी, माइनस टू प्लस माइनस हॉरिजॉन्टल होगी एट x। ठीक है, लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फर्दर डेरिवेटिव है इसको हम जो फर्दर इसका टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। आप इसके प्रैक्टिस करें बुक से भी, एंड प्रॉब्लम्स की भी, एग्जांपल्स की भी। तो इंशाल्लाह फिर जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 है वो शेयर करेंगे। मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी आपको अब LMS पे शेयर कर देता हूँ, प्लस कैलकुलस की एक बुक में आपसे ऑलरेडी शेयर की भी है, एक और बुक भी हम स्पेशली डेरिवेटिव के टॉपिक के लिए कैलकुलस की बुक एक और हम फॉलो करेंगे। तो मैं वो भी आपके LMS अकाउंट पे अपलोड कर दूंगा। फिर भी कोई अगर इशू है आप लोगों को, कोई बुक या नोट उसके हवाले से किसी भी रब्ता मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, तो या मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या उसके थ्रू। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।